So hi everyone, welcome to you all in my another video. And today video is about if a pharmacist, if you are a pharmacist and you study in overseas, now you want to register in Australia as a pharmacist. So there is a problem, and I'm going to discuss in A to Z in this video. This video is going to be in Hindi, and then I mean the English and Hindi. So this in both language people can understand, because most of you are always comment on my videos. Some ask in Hindi, some people ask in English. So basically, if you want to register as a pharmacist in Australia or any other country, so basic requirement is that you complete your degree and you must register in your country. Then you have to apply for skill assessment in Australia. But in case if you are study in any other country, for example, any Nepali student study in India or any Indian student study in Nepal, then in this case there is a problem. The three students I know personally, they contact me, and they are not getting a positive skill assessment, because skill assessment, the Australian Pharmacy Council, they required from that two letters. One is that they must register in their own country. Another letter, they want that you have to show the eligibility letter from a country where you studied. So these Nepali students, they study in India, B.Pharm or PharmD, and then they are registered in their country. Now they want to get a skill assessment in Australia. So the problem skill assessment, they are asking to get a eligibility letter from India. So now India Pharmacy Council of India says that this is not our responsibility. You have to go for a state pharmacy council. And if you are going to state pharmacy council and they are saying we never give to anyone, you are not registered with us, we cannot give you a letter. So this is the main problem for you. So the issue is that you can resolve basically if there's any state pharmacy council can give to you this letter, and otherwise you cannot register as a pharmacist in Australia. So when you are going for a study in any other country, these are the you have to consider these things. Once you complete your degree, then you cannot register as a pharmacist in any third country. So as I know, मैंने बताया आपको तीन लोगों को मैं ऐसे जानता हूँ जो नेपाली सिटीजन हैं, जिन्होंने इंडिया में स्टडी किया, B.Pharm किया, M.Pharm किया और PharmD किया. अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया फार्मेसी काउंसिल का जो इनका जो बेसिक इनका जो क्राइटेरिया ये है कि आप अपनी कंट्री में रजिस्टर्ड हों, प्लस आपने जिस जो है कंट्री में आपने स्टडी की है वहाँ से आप एक एलिजिबिलिटी लेटर लेकर आइए कि आप एलिजिबल हैं रजिस्ट्रेशन के लिए. अब कोई नेपाली सिटीजन इंडिया में जो है रजिस्टर नहीं कर सकता है, बिकॉज वो इंडियन सिटीजन नहीं है ना. तो मगर वो एलिजिबल है क्योंकि उसने स्टडी की है, तो उसका एक लेटर मिलना चाहिए. जैसे कि एक केस है कि उसने स्टडी किया जो है राजस्थान से. अब राजस्थान स्टेट फार्मेसी काउंसिल उनको लेटर नहीं दे रही है. वो बोल रही है कि आप हमारे साथ रजिस्ट्रेशन आपने किया नहीं है, तो हम आपको लेटर नहीं दे सकते हैं. फिर उसने लिखा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को. फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बोल रहा है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप जिस स्टेट में आपने पढ़ाई किया आप उस स्टेट से बात कीजिए. स्टेट भी लेटर नहीं दे रहा है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको लेटर दे रही है, तो जो है आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा ऑस्ट्रेलिया में, तो आप जो है एलिजिबल ही नहीं होंगे. सेम केस अनदर स्टेट का भी यही केस था, तीसरे बंदे का भी ऐसा ही केस था, है ना. तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है. अगर आप किसी दूसरी कंट्री में जब आप स्टडी करने जाते हैं, तो आप पहले से आप जो है मेक श्योर कर लें कि उस स्टेट में वो आपको लेटर देंगे वंस यू कंप्लीट योर स्टडी. अगर आपको स्टडी कंप्लीट करने के बाद लेटर नहीं मिलता है, तो फिर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते. तो फिर आप अपनी कंट्री में ही सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप दूसरी कंट्री में आप मूव नहीं कर सकते हैं. जैसे कुछ केस में ये हुआ है, जैसे कुछ लोगों ने पढ़ाई किया जैसे कि कर्नाटका में, तो कर्नाटक स्टेट फार्मेसी काउंसिल दे रहा है. तो कुछ स्टेट में इंडिया में, मतलब आपको पता है इंडिया में इतने सारे स्टेट्स हैं और हर स्टेट की अपनी फार्मेसी काउंसिल है, उनके अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं. अब जो जैसे कि राजस्थान फार्मेसी का, उनके पास कोई ऐसा केस आज तक आया ही नहीं. वो ये बोल रहे हैं हमारे यहाँ पर कोई बच्चा ऐसा मांगने ही नहीं आया है ना. तो ऐसे ही यूपी का भी वही हाल है. तो अगर आप स्टडी करने जा रहे हैं तो उससे पहले आप मेक श्योर कर लें उस स्टेट फार्मेसी काउंसिल से कि ये लेटर आपको मिलेगा या नहीं. अगर आपको नहीं मिलता है तो आप एडमिशन नहीं लें, फिर आप दूसरे स्टेट में लें या आप अपनी कंट्री में ही स्टडी करें. आपको है ना सेम फॉर दिस इज, अगर आप किसी और कंट्री में, फॉर एग्जांपल अगर आप इंडियन सिटीजन है और आप नेपाल में पढ़ने जाते हैं तो आपको भी यही प्रॉब्लम आएगी. या आप इंडियन सिटीजन है और आप जो है किसी ऑस्ट्रेलिया अगर आप पढ़ने आते हैं B.Pharm करने, तो आपने जब यहाँ से B.Pharm कर लेंगे, आप रजिस्टर
कर जाएंगे। और आप जब वापस जाएंगे इंडिया में तो इंडिया फार्मेसी काउंसिल वो भी यही मांगेगी कि आप रजिस्टर्ड हैं ऑस्ट्रेलिया में नहीं या नहीं है। तो अब अगर यहाँ पर आप रजिस्टर्ड होंगे तो फिर आपका इंडिया में भी हो जाएगा, वरना ये प्रॉब्लम आपको आ जाएगी, इक्विवेलेंसी वाली है ना। तो ये हर जगह प्रॉब्लम है, तो इसको आप पहले देखभाल के अपना एडमिशन लीजिए, जब पहले से आपको इन्फॉर्मेशन इसकी होनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा लोग प्रॉब्लम में हैं क्योंकि वो यहाँ पर रजिस्टर कर नहीं सकते हैं, तो उनका सारा का सारा पैसा जो है बर्बाद हो गया है। तो मैंने कहा कि मैं आपको पहले से ही बता दूँ इसके बारे में, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए अगर आप दूसरी कंट्री में पढ़ने जाते हैं। तो ये था आज का वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।